राधा माधव कुंज बिहारी जय 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Jayo Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Shri Radhe Jayo Radha Shyam Sundar Radha Jayo Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Shri Radhe Jayo Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Jayo Radha Madhav Radha Madhav Radha Madhav Shri Radhe Jayo Radha Madhav Radha Madhav Jayo Jagannatha Baladev Jayo Subhadra Jayo Jagannatha Baladev Jayo Gauranitai Jayo Gauranitai Jayo Prabhupada Jayo Srila Prabhupada Jayo Prabhupada Jayo Srila Prabhupada Om Jnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavancha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sadhivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Dev Shri Radha Krishna Padan Sagar Lalita Shri Visakha Vintancha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisubhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhasya Kripa Sindhuvaivacha Patitanam Pavnebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Om Namo Bhagavate Vasudevaya बोलिए Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudire Nashtaprayesu Abhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Nashtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhaktivinoda
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर इस्कॉन बड़ौदा में। आज हम भगवत गीता अध्याय 6 के 30 नंबर श्लोक से पाठ करेंगे। सब लोग गीता ले लीजिए अपने हाथ में। मेरे पीछे बोलेंगे, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। पेज नंबर 247 पे है, हिंदी में 247 पे है। तो थोड़ा सा आप लोग आगे आइए थोड़ा सा, ताकि पीछे और जगह मिलेगा बैठने के लिए लोगों को। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। कोई पढ़ेंगे? पढ़िए, स्वरूप को पढ़िए। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सर्वज्ञ न प्रणश्यति। और पढ़िए, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स मे न प्रणश्यति। मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग, यह जो माम मुझको पश्यति देखता है सर्वत्र सभी जगह सर्वम प्रत्येक वस्तु को च तथा मयि मुझ में पश्यति देखता है तस्य उसके लिए अहम मैं न नहीं प्रणश्यामि अदृश्य होता हूँ सह वह च भी मैं मेरे लिए न नहीं प्रणश्यति अदृश्य होता है। मेरे पीछे बोलेंगे, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। स्वरूप हिंदी आता है पढ़ने आपको? तात्पर्य कस के जरा पढ़िए, कस के पढ़िए, सब लोग सुनेंगे। हरे अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है, ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था
बस रुकिए थोड़ा। तो यहाँ पे बताया गया है क्या, पूर्ण योगी की दृष्टि, एक योगी है उसकी दृष्टि कैसी होती है, यहाँ पे चर्चा हो रही है। सर्वत्र परमात्मा अथवा कृष्ण का दर्शन, 29 और 30 नंबर 2 श्लोक में बहुत अच्छा बताया गया है। इसमें तो बताया गया है कि सर्वत्र समदर्शन, परमेश्वर को सर्वत्र देखना। कैसे? यो माम पश्यति सर्वत्र मयि पश्यति, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है। तस्याहम न पश्यामि सच में न पश्यति, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और न वो मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। तो भक्त के बारे में बताया जाता है, कैसे जो भक्त होता है, कृष्ण भावना भावी जो भक्त होता है, भगवान की विभूतियों को देखता है। तो पहले प्रभुपाद जी बता रहे हैं पहली लाइन में कि कृष्ण भावना भावी जो व्यक्ति होता है, भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावना में से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। तो ये हमें जानना पड़ेगा कि शरीर है, इस शरीर में शक्ति कौन दे रहा है कि हम देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, कार्य कर पा रहे हैं। बुद्धि कौन दे रहा है कि यहां तक पहुंच पाए हम। सबसे बड़ी बात तो ये है कि नहीं। कृष्ण हमारे हृदय में है, वो ज्ञान दे रहे हैं, तभी तो हम यहाँ पे आ रहे हैं, कि नहीं। तो यही बात बताया गया है कि कृष्ण भावना भावी जो व्यक्ति होता है वो सब समय क्या करता है, कृष्ण का गुणगान करने में लगा रहता है। और क्या बता रहे हैं, प्रत्येक वस्तु, आप सोचिए रोज हम सब्जी खाते हैं, है कि नहीं। तो उसमें रस कौन डाल रहा है। एप्पल है, ग्रेप्स है, अंगूर है, जो भी है खा रहे हैं, इसमें रस कौन डाल रहा है। तो भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि सूर्य और चंद्रमा मेरी आंखें हैं, है ना। तो भगवान चंद्रमा के माध्यम से क्या करवाते हैं, उसे सब्जियों में रस प्रदान कराते हैं। और जल, हम रोज पानी पीते हैं, भगवान बोलते हैं मैं जलों का स्वाद हूं, रसोहम तुम कौन्तेय, हे कुंतीपुत्र मैं जलों का स्वाद हूं। अभी हम रोज हम पानी पी रहे हैं, कभी धन्यवाद नहीं देते भगवान को। पानी पी तो भगवान को बोलना चाहिए, भगवान धन्यवाद आपने जल बनाया जिसे मैं पी के मेरी प्यास बुझ रही है। तो ये कृष्ण भावना भाव जो व्यक्ति है हर चीज में क्या करता है, वो कृष्ण का उसमें देखता है कि कृष्ण ने ये चीज बनाया है ना, उनकी विभूतियों को देखता है। किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावना में से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावनामित का मूल सिद्धांत यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। कृष्ण भावनामित कृष्ण का प्रेम का विकास है, ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। आत्म सत्कार के ऊपर कृष्ण भावनामित की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेममय कृष्ण से पूरित हो उठता है। तब भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाते हैं। इस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और न भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं। तो भगवान से हमारा संबंध कैसे स्थापित हो, यहाँ पे बताया गया है कि एक जीव जो है, तो भगवान की 3 शक्तियां हैं, जरा उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जो जीव है वो कई जन्मों से भगवान को भूल गया है और भूल करके क्या करे संसार में, इस भौतिक जो प्रकृति है उसमें क्या कर रहा है, वो प्रभुत्व जमा रहा है। भगवान कृष्ण को भूल करके सब चीज को क्या करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है कि मैं ये चीज मेरे अंतर्गत कार्य करे, ये चले। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि मया दक्षिण प्रकृति स्वीते सचराचरम, जो प्रकृति है मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो 3 चीजें यहाँ पे बताई गई है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। 3 शक्तियां हैं भगवान की, इन शक्तियों को जानना बहुत जरूरी है।
क्योंकि जब तक व्यक्ति भगवान की जो शक्तियां हैं उसको नहीं जानेगा तब तक वो समझ ही नहीं पाएगा कि कार्य कैसे हो रहा है। पहले तो 3 गुण जो होते हैं वो हमें कार्य कराते हैं। भगवान भगवत गीता के 14वें अध्याय के 15 में बोलते हैं भगवान कि जो प्रकृति के गुण हैं वो कार्य कराते हैं। क्या है वो? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसकी हमने बताया था, एक बार फिर से बताता हूं। ये गुण जीवात्मा को बांधते हैं और भौतिक सृष्टि में प्रत्येक वस्तु इन तीनों गुणों से प्रभावित होती है। तो ये गुण यहाँ नहीं, सर्वव्यापी हैं। ये गुण सबके ऊपर काम करता है। हाँ, 3 प्रमुख रंगों पर विचार करें, एक लाल, पीला और नीला। नीले और पीले को मिलाने पर हरा रंग बनता है और लाल और नीले रंग को मिलाने से जामुनी रंग बनता है। इन्हें अलग अलग प्रकार के मिलाने पर हमें इस संसार में पाए जाने वाले रंग मिल जाते हैं। इसी प्रकार से 3 गुणों के विभिन्न मिश्रणों से भौतिक जगत में व्याप्त समस्त योनियों में अस्मित मिश्रण तैयार हो जाता है। तो भौतिक सृष्टि की प्रत्येक वस्तु को 3 गुणों के आधार पर विभाजित किया जाता है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि भौतिक जगत में कोई भी गुण विशुद्ध रूप से विद्यमान नहीं है। तो एक बताया गया है कि ये पशु होता है, पशु में गाय को माना जाता है क्या? सतोगुणी। गाय सतोगुणी है। और शेर क्या है? रजोगुणी। और तमोगुणी कौन है? बंदर। और आध्यात्मिक 3 गुणों से परे आता है मनुष्य, क्योंकि भगवान ने उसको बुद्धि दिया है, करना क्या है उसके ऊपर विचार कर सकता है। लेकिन ये पशु जो है जब विचार उतना नहीं कर पाते। समय का भी बताया गया है। प्रातःकालीन जो है बताया गया है गाय सतोगुण, शेर दोपहर में रजोगुण हो जाता है और बंदर रात तमोगुण। और सबका स्थान है अलग अलग। तो हमें जानना पड़ेगा कि ये जो गुण है प्रत्येक गुण से व्यक्ति बधा रहता है। 3 गुणों के बंधन के लिए 3 रस्सी का उपयोग बताया गया है। एक क्या बताया गया है? सतोगुण सोने की कड़ी है, रजोगुण चांदी की कड़ी है और तमोगुण लोहे की कड़ी है। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से है कि 3 रस्सी है, एक सोने की, एक चांदी की, लोहे की। आप लोग किससे बधना चाहेंगे? बताइए। 3 रस्सी है, आप किससे बधना चाहेंगे? बताइए। हाँ प्रभु जी, अच्छा है, बता रहे। हम बधे ही क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमें चाहिए। क्या कोई जेल में रहना अच्छा लगता है किसी को? किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो यदि कोई कैदी जेल में बंद है तो क्या इससे अंतर पड़ता है कि वह सोने, चांदी या लोहे की कड़ी से बंधा है? ये प्रश्न है। कुछ भी हो, कैदी तो कैदी ही होता है। तो ये हमें जानना पड़ेगा कि गुण जो है हमें बांधे रहता है ना। तो हमें बताया गया यहाँ पे 3 चीजें बताया गया। यहाँ पे क्या बता रहे हैं? यहाँ पे कि कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेममय कृष्ण पूरित होता है, तब भगवान तथा भक्त बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाते हैं। उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं कह सकता और न भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं। कृष्ण से तदात्म होना आध्यात्मिक लय आत्मविश्वास है। भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। तो भक्त जो होता है सब चीज क्या देखता है? वो भगवान की उपस्थिति देखता है। इसीलिए हमें तमोगुण, रजोगुण से उठ करके सतोगुण में कम से कम आएंगे, तभी चीजें समझ में आएंगे, है ना। शास्त्र को समझना है तो
तो ये जो भक्ति योग है बहुत ही क्या है, सुलभ है। जैसे ब्रह्म संहिता में बताया गया है, क्या मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग, बहुत अच्छा आता है ब्रह्म संहिता का श्लोक, मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम साम सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इस श्लोक का याद करना है आप लोगों को, होमवर्क है। बोलिए, प्रेमंजन चोरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। बोलिए, मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में न तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं और न भक्त ही उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। तो ये बात बताया गया है ब्रह्म संहिता। ये ब्रह्म संहिता जो पुस्तक है, ये ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये जो पुस्तक है आप देख रहे हैं ब्रह्म संहिता, ये भगवान के धाम की जितनी भी सारी चर्चा इसमें लिखा गया है। ब्रह्मा जी अनेकों वर्ष तक तपस्या किए जानने के लिए, बस मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। कमल डाल के नीचे देख के बैठ के नीचे आ रहे थे, जा रहे थे। 10,000 साल तक तपस्या की ये जानने के लिए मैं कौन हूँ केवल, है ना। अभी सोचिए, जो सृष्टि करता है वो जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ। पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि करता है ना ब्रह्मा जी, और हम चाहिए कि हम कैसे जाने। हम उनके ही द्वारा बनाए गए हैं ना जीव, हमें भी सोचना चाहिए। क्योंकि हमें जानना पड़ेगा पहले। तो ये जो श्लोक है 38 नंबर श्लोक में बताया गया है यहाँ पे कि जो श्याम सुंदर जो विग्रह है उनका एक साथ सविशेष निर्विशेष स्व विरोधी अचिंत विग्रह है। सच्चे भक्त उस रूप को अपने शुद्ध हृदय में भक्ति की समाधि द्वारा दर्शन करते हैं। श्याम वर्ण जड़ भौतिक जगत में दिखने वाला नीला रंग नहीं अपितु नित्य सुगल चिन्मय रंग है तथा जड़ नेत्रों द्वारा दृश्यमान नहीं है। तो ये नेत्र को क्या बताया गया, ये जड़ है। अब सोचिए, इन नेत्रों से क्या हम देख सकते हैं। अभी लाइट चली जाए तो अपने आप को भी नहीं देख सकते। सोचिए, है ना, क्या देख सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अर्जुन जैसे भगवत भक्तों का चिन्हों का अनुगमन करें, क्योंकि जब तक हम भक्तों के द्वारा अनुगमन नहीं करेंगे, भक्त जो है भगवान के बहुत प्रिय होते हैं। आप लोगों को एक मैं स्टोरी सुनाऊंगा। आप लोगों ने मैदानों का नाम सुना होगा, महाभारत में आता है जो मैदानों होता है। जो खांडोप्रस्थ में अर्जुन जो क्या करते हैं, पूरे वन को जलाने लगते हैं, आप लोग को याद है ना। तो मैदानों भी क्या करता है, उसमें से भागता भागता जब आता है, किसके पास आता है वो, जबकि कृष्ण वहां पे होते हैं, अर्जुन भी होता है, भगवान स्वयं है वहां पे, लेकिन मैदानों किसके पास आता है, जो मैदानों किसके पास आता है, अर्जुन के पास आता है। वो विचार करता है कि मैं, क्योंकि जिन्होंने आग लगाई है वो कोई बुझा सकता है ना,
तो आता है अर्जुन के पास और शरणागत होकर के उनसे क्षमा याचना की करता है ना। तब अर्जुन क्षमा प्रार्थना करते हैं तो भगवान भी क्षमा कर देते हैं, क्योंकि भक्त उनका है जो, है कि नहीं। इसी प्रकार से भगवत भक्ति में हमें चाहिए कि हम पहले भक्तों का मार्गदर्शन में रहें और उनके अनुसार भक्ति करें, तो भगवान हमसे खुश होंगे। यही गुरु शिष्य परंपरा है, हमें जानना पड़ेगा। अलग से हम कुछ करने जाएंगे तो क्या होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। तो भगवत गीता का जो लास्ट श्लोक है उसमें भी चर्चा होती है। आप लोग खोलिए, मेरे पीछे पढ़ेंगे। भगवत गीता सबसे लास्ट श्लोक कौन सा है? हाँ, मेरे पीछे सब लोग बोलेंगे, बहुत अच्छा है। इसमें चर्चा होता है, बोलिए, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिमतिर्मम। बोलिए, जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। ऐसा मेरा मत है। अब देखिए, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, कृष्ण शब्द आया है। भगवान श्री कृष्ण। देखिए, अर्जुन जो है उनके ही पद चिन्हों पे हमें चलना पड़ेगा और कृष्ण को जानना है। तो हम यहाँ पे आज का श्लोक बताया गया है, भगवत गीता में हम जो 30 नंबर पढ़ रहे हैं, कि जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। तो अर्जुन देखिए कैसा भगवत भक्त था। अर्जुन जो था नित्य भगवान का साथ में रहता था, है कि नहीं। वो देखता था, है कि नहीं, क्योंकि उनको उनकी वचनों को वो पालन कर पा रहा था। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम भक्तों के मार्गदर्शन में भक्ति करें, है कि नहीं। हम इन आंखों से क्या देख सकते हैं? आप देखिए, ब्रह्म संहिता में लिखा है, क्या लिखा है? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये जो नेत्र है जड़ है, जड़ वस्तु चेतन वस्तु का क्या देखेंगे आप? क्या मूल्य है इन आंखों का, बताइए। भगवान की बोल रहे अर्जुन को, दिव्यम 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 तदामी चक्षु। तो वो दिव्य चक्षु दे रहे हैं अर्जुन को, तब वो देख रहा है भगवान के विश्व रूप को, है कि नहीं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम भगवान के भक्तों के मार्गदर्शन में सेवा करें, हैं? तो भक्ति योग में बताया गया है, श्री भगवान के निस्वार्थ सेवा के माध्यम से भगवत प्रेम विकसित करने का योग है। इस मार्ग पर साधक अपनी समस्त इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान की सेवा में नियुक्त करता है। ऐसा करने से हम समस्त भौतिक उपाधियों से ऊपर उठ जाते हैं, हमारे चित्त एवं इंद्रियां शुद्ध होते हैं और हृदय में भगवत प्रेम जागृत होता है। तो भगवान का नाम है क्या? ऋषिकेश। सारे इंद्रियों के भगवान मालिक हैं। उन्हीं इंद्रियों से अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो हमारी इंद्रियां क्या हो, धीरे धीरे शुद्ध होंगी। आज जब इंद्रियां शुद्ध होंगी तभी हम उनको दर्शन कर सकते हैं। तो भगवान की इंद्रियों को हमें क्या करना चाहिए? समस्त उपाधियों से मुक्त होना चाहिए। सर्वोपाधि विमुक्त तत्प्रत्येन निर्मलम। तो हमें समस्त उपाधियों से ऊपर उठना पड़ेगा। भगवान की सेवा कैसे? इंद्रियों के स्वामी जो भगवान ऋषिकेश है, ये आंखों से भगवान का दर्शन करना, कानों से भगवान कथाएं सुनना, आगे आने वाला है अभी इसमें। तो प्रहलाद महाराज भगवत भक्ति की 9 विधियों का वर्णन करते हैं। इनमें से किसी एक के पालन द्वारा व्यक्ति भक्ति योग की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। मेरे पीछे बोलेंगे, श्री प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यम् सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसं पिता विष्णु
भक्ति चिन्नवलक्षणा क्रियते भगवत यथा तन्मन्ये अदितमुत्तमम्। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 23 और 24 नंबर का श्लोक बताया गया है। नवधा भक्ति के बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पे। तो नवधा भक्ति में सबसे पहले आता है कि श्रवण करना। जब तक हम भगवान की कथाओं को नहीं सुनेंगे तब तक धीरे हमारे में कीर्तन में रुचि नहीं आएगा, और जब कीर्तन में रुचि नहीं आएगा तो विष्णु का स्मरण, भगवान कृष्ण का स्मरण होने ही वाला नहीं है। हाँ, तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि भगवान श्री विष्णु के पवित्र नाम, रूप, गुणों, सात सामान्य लीलाओं का श्रवण एवं कीर्तन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए और श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, 16 उपचार के साथ उनकी अर्चना करना, श्री भगवान की स्तुति करना, उनके सेवक बनना, श्री भगवान को अपना घनिष्ठ मित्र मानना और अपना सर्वस्व उन्हें समर्पित करना। मानस देहो गेहो जो कीछु मोरा अरपिलु आपदे नंद किशोर। ये मानस देह गए, जो हमारा शरीर है सब कुछ है भगवान को मैंने अर्पण कर दिया। हे नंद कुमार, आपका ही शरीर है, हाँ, अब मैं आपकी से सेवा करना चाहता हूं, मुझे बुद्धि प्रदान कीजिए भगवान। हाँ, ये हमारा भाव होना चाहिए। दूसरे शब्दों में शरीर, मन तथा वाणी से उनकी सेवा करना। इन 9 विधियों को शुद्ध भक्ति स्वीकार किया गया है। जिस व्यक्ति ने इन 9 विधियों द्वारा अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित किया है उसे सर्वोच्च विद्वान मानना चाहिए, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो बताया गया है शरीर, मन और वाणी। श्लोक आता है कि काया मनसा वाचा। तो हमें चाहिए कि शरीर, मन और वाणी। देखिए शरीर, BMW गाड़ी देखा आप लोगों ने, बॉडी माइंड वर्ड ये याद हो जाएगा आपको, है ना। शरीर, बॉडी और माइंड, है ना। BMW एक गाड़ी है, शरीर भी इस गाड़ी से हमें क्या करना चाहिए? कृष्ण की स्मृति करना चाहिए, है कि नहीं। तो वाणी से क्या करना चाहिए? हमें भगवान का गुणगान करना चाहिए, है ना, वाणी से। और शरीर से जितना शक्ति भगवान ने बल दिया है, कुछ भगवान के लिए सेवा भी कर सकते हैं, शरीर है तो मंदिर मार्जन भी कर सकते हैं। और मन से सदैव भगवान का नाम करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब नाम जप करेंगे तो मन भगवान में लगेगा, क्योंकि मन तो भागेगा इधर उधर, इसलिए मन को खींचना है तो भगवान का नाम करेंगे तो मन लगेगा। इन 9 विधियों को शुद्ध भक्ति स्वीकार किया गया है। जिस व्यक्ति ने 9 विधियों द्वारा अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित किया है उसे सर्वोच्च विद्वान मानना चाहिए। तो जो ही भगवान के नाम जप करता है वो सबसे विद्वान व्यक्ति है। रूपा जी बोल रहे हैं कि सारा जगह तपस्या उसने जितने पिछले जन्म में था सब कुछ पूरा कर लिया, उसने वेदा अध्ययन कर लिया, गंगा नहा लिया, सब कुछ कर लिया, तब जाके अभी मेन पॉइंट पे पहुंचा है नाम जप करके। वो भाग्यशाली व्यक्ति है जो रोज नाम का जप करता है। विद्वान मानना चाहिए, शास्त्र बता रहा है, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, मैं सब कुछ जान गया है कि लक्ष्य यही है। हरिनामेव केवलम। नीचे उन भक्तों का उदाहरण है जिन्होंने इन 9 विधियों के पालन द्वारा जीवन सफल किया है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि श्रवण जो एक एक विधि है, एक एक आइटम है, प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो श्रवण अर्थ क्या होता है? श्री भगवान के विषय में सुनना। और भक्त जिसने इस विधि द्वारा पूर्णता प्राप्त की है, कौन प्राप्त किया? परीक्षित महाराज। कीर्तनम में कौन आता है? श्री भगवान के विषय में बोलना अथवा कीर्तन करना। कीर्तन करना ऐसा नहीं ढोल मृदंग ले लिए तो कीर्तन नहीं, हम कथा कर रहे, ये भी क्या है? कीर्तन है। यहाँ बताया क्या है ना, भगवान के विषय में बोलना भी क्या है? कीर्तन है। आप कृष्ण के बारे में किसी घर में बता रहे, कृष्ण को बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो भी कीर्तन है। भगवान के कुछ गुणगान कर रहे हैं ना, वो भी कीर्तन है। तो ये कौन सा है? कौन बताए कीर्तन कौन से के? शिला सुखदेव गोस्वामी। शिला सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम सुना रहे, किसको सुना रहे? परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। बहुत अच्छा, देखिए लाइन बैठता जाएगा, धीरे याद रखेंगे तो आप लोग, ठीक है। और स्मरणम, श्री भगवान का स्मरण करना।
तो कैसे? प्रहलाद महाराज जैसे, है ना। पिताजी कितना दुख दे रहे हैं बेटे को, सोचिए। हाँ, मार दो इस मेरे बच्चे को। हाँ, ये विष्णु का नाम ले रहा है। हाँ, है कि नहीं? 5 साल का बालक है कि नहीं? कितनी सारी यातना दी गई उसको, लेकिन उन्होंने क्या बोला? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, नाम लेने से कितना हृदय तुरंत लगता है कि एकदम हमारा ध्वनि में देखिए कितना शक्ति है, भगवान के नाम में कितना शक्ति है कि नाम लेने से प्रहलाद महाराज केवल बोलते थे नाम, भगवान विष्णु तुरंत हाजिर होते थे उनकी सेवा के लिए। और अर्चनम, श्री भगवान के श्री विग्रह की अर्चना करना। तो पृथु महाराज हमेशा नित्य और भगवान की विग्रह की सेवा करते रहते थे। हाँ, हमें भी चाहिए कि हमारे घर में मंदिर हो तो हम भी रोज भगवान की सेवा करें। हाँ, वंदनम, वंदनम में श्री भगवान की स्तुति कौन करते? अक्रूर जी नित्यम वंदनम करते थे, भगवान के गुणों का गुणगान करते थे, स्तुति करते थे। और आप लोगों को तो मालूम है, पाद सेवनम, श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा करना। तो भगवान देखे विष्णु जी सोए हुए हैं सरसैया पे, लक्ष्मी जी क्या कर रही है? चरण दबा रही है। और हमारे यहाँ जब दिवाली होता है तो हम लेके आते हैं किसको? लक्ष्मी जी को लेके आते हैं, विष्णु को लाते ही नहीं। तो क्या आएंगी? क्या कहीं नहीं भी आएंगे, कभी नहीं आएंगे। किसके साथ आएंगे? नारायण के साथ आएंगे लक्ष्मी, है ना। लक्ष्मी नारायण दोनों साथ में होना चाहिए, तब जाके हमें पूजा करना चाहिए, है ना। तो पति और पत्नी दोनों हैं। भगवान की सेवा कैसे करनी देखिए हमें बताया जा रहा है, सब विधि बताया जा रहा है। दास्यम, श्री भगवान के सेवक बनना, कैसे? हनुमान जी जैसे। सख्यम, श्री भगवान के साथ मैत्री करना, तो अर्जुन का उदाहरण आ रहा है मैत्री स्थापित करने। आत्मनिवेदनम, सर्वस्व श्री भगवान को समर्पित करना, कैसे? तो बलि महाराज की जैसे। आप लोग को याद हुआ? कुछ आइटम याद हुआ? याद हो गया आप लोगों को? ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा ध्यान से थोड़ा सा, है ना। महान भक्त अम्बरीश महाराज ने इन समस्त 9 विधियों का पालन करके अपना जीवन पूर्ण किया। जीवन की पूर्णता प्राप्त करने के लिए भक्ति योग सर्वाधिक सरल और सर्वाधिक शीघ्र है एवं सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है। तो ये देखिए, आप लोगों को भागवतम में एक दिखाता हूं। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भागवत कथा हो रही है, श्री सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? परीक्षित महाराज को। और अब देख रहे हैं कि दूसरा आता है जो सुखदेव गोस्वामी है। यहाँ पे चर्चा जब हो रही थी, फिर से वो चर्चा जो वंदनम है, और अक्रूर जी हैं क्या करते हैं? वो ही सुनाते, भगवान गुणगान करते हैं। और लक्ष्मी देवी को आपको बताया है चरण कमल की सेवा कर रही हैं। और प्रहलाद महाराज हैं, अपने जो भी बालक हैं, जब किसका लंच का टाइम होता है तो भगवान विष्णु की कथा नित्य कीर्तन चालू करते हैं। संड और अमर्क दोनों कुछ और ज्ञान देके जाते हैं कलश में, है कि नहीं। लेकिन जब लंच होता है तो भगवान विष्णु की कथा कीर्तन चालू हो जाता है। तो बस क्या बोलते हैं? प्रहलाद आप अच्छा स्टोरी सुनाते हो, आप भी सुनाओ मेरे को और ज्यादा, है कि नहीं। भगवान विष्णु के गुणगान सुन के उनको और आनंद आता है, सब कीर्तन के नाचने लगते हैं। और पृथु महाराज के बारे में बताया गया यहाँ पे। फिर हनुमान जी को दास्यम, अर्जुन का साख्यम। तो ये 9 विधि के भक्ति के बारे में बताया गया है। और बलि महाराज को देखिए, पूरा सब कुछ दान कर दिया उन्होंने, है ना। और अम्बरीश महाराज जो हैं पूरे पृथ्वी के राजा होते हुए, ऐसा राजा है कि पूरा, जब राजा ऐसा होगा तो प्रजा भी भगवान की सेवा में लगना चाहती है। तो बताया गया है कि श्री भगवान की ओर जाने वाला मार्ग एक सीढ़ी के समान है। इसे योग सीढ़ी भी कहते हैं। विभिन्न योग पद्धतियां उस सीढ़ी के विभिन्न सोपान है। भक्ति योग इसका सर्वोच्च सोपान है। वस्तुतः भक्ति योग लिफ्ट के समान है, जो हमें अत्यंत सरलता एवं शीघ्रता पूर्वक सबसे ऊपर ले जाता है। अन्य मार्ग सीढ़ी चढ़ने के समान है, जो अत्यंत धीमी एवं कष्टदायक है। तो 100 मंजिला बिल्डिंग है,
आपने देखा वो चढ़ के आए होंगे तो सीढ़ी भी है और बगल में कहीं लिफ्ट भी हो मान लीजिए, तो 100 मंजिला पे जाना है तो कैसे जाएंगे जल्दी से आप? लिफ्ट से। तो भक्ति योग क्या है? लिफ्ट के समान है। क्या है भक्ति योग? लिफ्ट के समान है। दूसरे शब्दों में सीढ़ी के लंबे मार्ग में आने वाले अर्थ हुआ कि व्यक्ति अनेक जन्मों में मनुष्य के 6 स्तरों, नियम तोड़ने वाले, कर्मकांडी, कर्मयोगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी तथा भक्ति योग पर आगे बढ़ता है। तो यही 6 स्तर के बारे में थोड़ा चर्चा करूंगा। इसलिए हमें समस्त समय, शक्ति तथा असुविधाओं से बचते हुए तुरंत भक्ति योग के सरल सहज मार्ग में आपको अपनाना चाहिए। तो हमें बताया गया है कि देखिए सबके पास समय कम है। कोई लाइन में लगना चाहता है क्या? बैंक में जाता है लाइन में लगता है तो सर दर्द हो जाती है, एटीएम में जाता है लाइन में तो सर दर्द होता है, डॉक्टर के पास जाता है देखता है पर्ची कटाना तो सर दर्द होता है। तो भक्ति योग में भी हम आते हैं, हाँ, तो कोई कर्म कांडी नियम तोड़ने वाला जाए, कर्म योग ज्ञान योग के पास अष्टांग, तो क्या होगा? समय का केवल नष्ट होगा आपका। हाँ, तो कहाँ जाना चाहिए हमें? भक्ति योग के पास जाना चाहिए। हाँ, भगवत भक्ति। तो ये जो एक चीज है हमें बताया गया यहाँ पे, तो ये बताया गया है नियम तोड़ने वाले होते हैं सबसे पहले, उसके ऊपर आता है कर्मकांडी ब्राह्मण आता है। हाँ, फिर आता है कर्मयोग, फिर ज्ञान योग, अष्टांग योग, फिर ऊपर आता है। तो अप्रत्यक्ष विधि है। और भक्ति योग क्या है? डायरेक्ट लिफ्ट के समान है। हाँ, भक्ति योग स्वतंत्र है, परंतु अन्य सब योग मार्ग पूर्णता प्राप्त करने हेतु तो भक्ति योग पर सब आश्रित हैं। तो जितने भी हैं ये नियम तोड़ने वाले, कर्मकांडी, कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग, सब किस पे आश्रित हैं? सब एक दूसरे भक्ति योग पे आश्रित हैं, सब कुछ है ना। दूसरे शब्दों में भक्ति योग पूर्णता प्राप्त करने के लिए श्रम में पर्याप्त है, परंतु अन्य योग पद्धतियों को पूर्णता प्राप्त करने के लिए भक्ति योग की आवश्यकता होती ही है। योग सीढ़ी किसी भी सोपान पर व्यक्ति भक्ति योग को स्वीकार कर सकता है। हाँ? एक प्रश्न आता है कि योग सीढ़ी के किसी भी सोपान से भक्ति योग स्वीकार करते क्या हो सकता है? कोई बोल सकता है कि भक्ति योग क्यों? अभी बोलेंगे हरे कृष्णा क्यों करते हैं? अभी बुढ़ापे की काम है ये सब, है कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? लोग बोलेंगे कि अभी आप कितना बढ़िया शरीर है, मंदिर क्यों जाते हो अभी आप? ये तो आपको एंजॉय करने का दिन है है कि नहीं? तो हमें जानना पड़ेगा कि भक्तों के संग से ही परिवर्तन हो रहा है। हाँ, जब आप मंदिर आते हैं, किसी को देखते हैं कि ये व्यक्ति आनंद में है, इसको क्या मिला है कि आनंद में है, हाँ, तभी देख के हमें भी लगता है हमको जुड़ना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, तो भक्तों का संग बहुत जरूरी है। साधु संग सर्वशास्त्र के लौ मा साधु संग सर्व सिद्धि है। तो बताया गया है, उदाहरण बताया गया है, जो श्री कृष्ण तो उनके भक्तों की संगति करके भक्त बन गए। तो आप लोगों को मालूम है कि भक्ति योग के स्तर पे आने के लिए क्या करना पड़ता है? संग का हमें करना पड़ता है। जैसे एक उदाहरण आता है, आप लोगों को बताता हूं मैं। आप लोगों को मालूम होगा, ये मृगारी की कहानी सुना होगा आप लोगों ने। सुना है आप लोगों ने? कितने लोग सुना? हाथ उठाइए जरा। एक ही आदमी सुना है, ठीक है। कहानी में थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं। ये जो मृगारी था, ये जंगल में रहता था और क्या करता था, एक पूरा परिवार था, है ना, और ये निसंग पशुओं की हत्या करके अपना जीवन यापन करता था। जंगल में शिकार करना इसका काम था। और क्या करता था कि पशुओं को, ऐसा नहीं है, वो मारता था तो अधमरा करके छोड़ देता था, जिसे तड़पते रहे। वो देख करके बहुत उसको आनंद आता था। ऐसा नहीं चलो एक बार मार दिया मर गया, नहीं, उसको ऐसा मारता था कि अधमरा करके छोड़ देता। तड़पते थे तो उसको हंसता था, बहुत मजा आता था। ऐसा था वो मृगारी। तो नारद मुनि देखा कि आए उसके पास, बोले तुम पशुओं की हत्या करते एक ही बार मार दो ना कि मर जाए वो, क्यों उनको ऐसा तड़पते हो छोड़ देते हो? तो मृगारी बोला, देखिए मैं जब उनको देखता हूँ तड़पते हैं तो मेरे को बहुत आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए मैं उनको अधमर कर छोड़ देता हूँ, पूरा मारता नहीं हूँ, तब मेरे को आनंद आता है। ऐसा बोला मृगारी ने। तो बोला तुमको मालूम है, तुम अभी देखो, तुम इतने मारे हो, जितने पशुओं को मारे हो ना, वो देखो सब पीछे तुम्हारे खड़े हैं और सब सोच रहे हैं कि कब तुम्हारा आत्मा निकले कि मैं भी तुम्हारा हत्या कर सकूं।
ये सूक्ष्म शरीर में देखो आप कितने सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो इसको लगा कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। तो वो तो बोला नहीं, मैं तो अपनी परिवार का पालन करने के लिए ऐसा कर रहा हूं, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरे परिवार भूखा मर जाएगा। तो नारद मुनि बोला ठीक है, आप जाओ परिवार वाले से पूछो कि अगर मेरी चीज जो होने वाला है गलती उसमें भाग लेंगे क्या, हाँ आप में भाग लेंगे क्या, अगर आपको यातना का शरीर मिलेगा आपको कष्ट होगा तो क्या उसमें उनको बताओ तो क्या भाग लेंगे। तो आए पूछा मेरे घर पे आके, देखो मेरे को बहुत नरक में यातना भोगना पड़ेगा, आप लोग इसमें भाग लोगे क्या। सबने हाथ खड़ा कर दिया, नहीं इसमें मैं आप कर रहे तो आपको भोगना पड़ेगा। फिर आया नारद मुनि के पास तो बोला कोई भाग लेना नहीं चाहता है। फिर उन्होंने नारद मुनि ने ज्ञान दिया, देखो अगर तुम ऐसे ऐसे यातना करते रहोगे तो बहुत तुम्हें कष्ट होगा नरक में, है ना, अनेकों जन्म तक तुम्हें नरक में रहना पड़ेगा। तो फिर नारद मुनि ने उनको ऐसा ज्ञान दिया कि श्री नारद मुनि की संगति से पापी शिकारी मृगारी एक दयालु भक्त में परिवर्तित हो गया। श्री नारद मुनि ने एक पापी डाकू को भी संत बनाया जो आगे चलकर वाल्मीकि मुनि के नाम से विख्यात हुए थे। ये भी आप लोग कहानी जानते हैं वाल्मीकि मुनि ने। तो जो मृगारी था, एक बार क्या हुआ, नारद मुनि और एक और यहाँ पे हैं, देख रहे हैं कौन है, हाँ पर्वत मुनि है, दोनों लोग जा रहे थे। अब नारद मुनि ने तो दीक्षा उच्छा दे दिया था इनको मृगारी को कि भगवान के नाम का जप करो, इससे ही तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। तो बोले कि मेरा घर का पालन कैसे चलेगा। तो मृगारी को बताया देखो तुम बढ़िया से भगवान का नाम जप करो, भगवान हरि जो है नारायण वो सबकी खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं। तो देखे कि अरे इस जंगल में एक साधु रह रहा है, ये तो वही मृगारी, ये तो भक्त बन गया। तो कोई घर से अपने चावल लेके आके देने लगा, कोई आटा लाके देने लगा, कुछ लाके सामग्री देने लगा। धीरे धीरे इसकी प्रख्याति बढ़ने लगी। तो सोचा अरे इतना सारा मिलने लगा, इसको मैं कितना खा सकता हूं। तो इन्होंने भी क्या किया, वो बांटना चालू कर दिया। इसका हृदय परिवर्तन हो गया मृगारी का। तो एक बार क्या हुआ कि पर्वत मुनि नारद मुनि आकाश यात्रा से जा रहे थे। तो नारद मुनि ने बोला चलो एक मेरा शिष्य रहता है जंगल में, चलो देख के आते हैं अभी क्या कर रहा है, थोड़ा देख के आते हैं। तो दोनों पैदल आ रहे थे, हाँ तो देखे कि दौड़ के आए, मेरे गुरुजी आ रहे, गुरुजी आ रहे। तो नीचे देखा कि एक चींटी है वो लाइन लगा के जा रही है, हाँ तो देखा कि अरे मैं पैर रखूंगा चींटी मर जाएगी। तो क्या कर रहा है देखिए, नहीं मृगारी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो अपने उत्तरी से क्या कर रहा है वो, हाँ एक चींटी है उसको रास्ता को सफाई कर रहा है, कोई जीव मर न जाए फिर मैं उसको पार करूं। तो ऐसा हृदय परिवर्तन हो गया। अब बताइए वही मृगारी जो है, हाँ जो नृसिंह पशुओं की हत्या कर रहा था, आज इस चींटी को भी देखे पैर रखना नहीं चाहता। वो जान गया कि आत्मा उसके अंदर भी है, जो हमारे अंदर आत्मा उस चींटी के भी अंदर वही आत्मा है। तो ऐसा होता है भक्तों की संगति से परिवर्तन। हाँ तो पहला बताया है कि नियम तोड़ने वाले भक्त, हाँ मैंने बताया ना योगा लीडर में, देखिए यहाँ पे बताया ना आप लोगों को, ये नियम तोड़ने वाले। फिर उसके बाद कौन आते हैं, कर्मकांडी। कर्मकांडी में कौन है आपको बताता हूं। ये देखिए कर्मकांडी में आते हैं महाराज प्राचीन परिषद, पूरी तरह से कर्मकांड में डूबे हुए थे, परंतु नारद मुनि की कृपा से वे भगवत भक्त बन गए। इसकी भी स्टोरी बहुत अच्छा भागवतम में प्राचीन परिषद की। हाँ ये प्राचीन पूरे राजा होते हुए भी अनेकों रानियों के साथ राजमहल में भोग कर रहे थे, और ये भी क्या करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे, बड़े बड़े सब कुछ करते थे, है ना। और इन्होंने भी देखा कि बहुत सारा कर्मकांड करते थे, किस लिए, उससे हमको क्या हो, आनंद की अनुभूति हो। मैं आपको 1000 रुपया दान करता हूं, बदले में मेरे को 2000 मिले, मैं एक कुआं खुनवाऊंगा, इससे बड़ी अगले जन्म में अनेकों भोग करने का मिले। तो इस विचार से उन्होंने कर्मकांडी ब्राह्मण के साथ वो यज्ञ करते थे, है कि नहीं। लेकिन देखा कि ये तो पूरे तरह से अपने भोग ऐश्वर्य में डूबा हुआ है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया उपचेष्टाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। हाँ भगवान गीता में बोलते हैं ना, तो जिसकी मति इंद्रिय भोग में डूबी हुई है वो क्या भक्ति के बारे में समझेगा। बता बता थक जाएंगे फिर भी लेना चाहिए क्या, क्योंकि ऐश्वर्य उसके साथ ज्यादा है, इसलिए वो समझ नहीं पाएगा। तो नारद मुनि ने सोचा चलो इसको ज्ञान देते हैं, क्योंकि प्राचीन वर्ष से जितने लड़के सब भगवत भक्त बन गए थे, राजा है यही छोड़ ही नहीं रहा था, चलो अब राजा को भक्त बनाते हैं। तो इनको भी ज्ञान दिया। कैसे ज्ञान दिया,
आप भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें आता है पुरंजन की कथा आती है। पुरंजन को बताया ये शरीर पुरंजन है। जैसे एक बताया कि एक वन में एक स्त्री है, शरीर को बताया, शरीर को लेकर 9 द्वार है इसमें। इसमें इंद्रियां हैं, कैसे के साथ इंद्रियों के साथ, फिर ऐसे करके पूरा कन्वर्ट किया, मतलब इन्हीं के ऊपर स्टोरी रचा। एक एक जंगल के नगर में एक रहता है पुरंजन नाम का राजा, इसमें 9 द्वार है, शरीर को पूरा देखिए कितना अच्छा प्रचार किया। तो समझ गया कि अरे नारद मुनि किसी और को नहीं बता रहे, ज्ञान मेरे को ही दे रहे, फिर उसको आसक्ति टूटी, फिर वो भगवत भक्त बना। तो ये है कर्मकांडी। फिर क्या आता है? ज्ञान योगी। चारों कुमार ब्रह्मवादी थे, परंतु श्री भगवान के चरण कमलों पर अर्पित तुलसी दल की सुगंध लेने से वे भक्त बन गए। देखो मंदिर में आते हैं, भगवान के चरणों से तुलसी मिलता है, उसकी सुगंध लेने से वो भगवत भक्त बन गए। ये क्या थे? ज्ञान योगी थे। ये जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया तो ये लोग देखिए कितने छोटे छोटे बालक हैं, आज भी हैं, सोचिए। और ये जो हैं ये चतुर्थ कुमार हैं, इन्होंने बोला देखिए मैं आपके सृष्टि में कोई हेल्प नहीं करूंगा, डायरेक्ट मना कर दिया ब्रह्मा जी को। मना कर दिया, बोले कि मैं तो भगवान का भजन ही करूंगा। तो देखते हैं चतुर्थ कुमार छोटे छोटे बालक है, कितना सारा ज्ञान है। और इन्होंने भी देखा कि जब मिलने गए थे तो जय और विजय ने रोक दिया था इनको, कहाँ जा रहे हो आप लोग? तो बोले तुमको यहाँ बैकुंठ में रहने की जरूरत नहीं है तुम्हारा, उन्होंने साथ दे दिया था। वो तो भगवान की इच्छा से हुआ था, हम नहीं समझ सकते, भगवान को लीला करनी थी यहाँ पे, है कि नहीं? तो चतुर्थ कुमार को देखिए केवल भगवान के सुगंध जो तुलसी दल है सुगंध लेने से भक्त बन गए। फिर आता है क्या? अष्टांग योगी। तो आप लोगों ने भी कहानी सुना होगा दुर्वासा मुनि की, अम्बरीश महाराज की कहानी। योगी थे, बहुत बड़े योगी थे। तो अम्बरीश महाराज के संपर्क में आने से शक्तिशाली दुर्वासा मुनि भक्तों एवं भक्ति की महिमा को समझ पाए। ये देखिए सुदर्शन पीछे पीछे पड़ा है इनके, ये सब जगह भाग रहे हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने अपराध कर दिया एक भक्त के प्रति। तुरंत तुरंत क्या हुआ? भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया, है कि नहीं? तो ये भाग रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं? ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं, शिव जी के पास जा रहे हैं। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि भक्तों के साथ ही भक्ति करनी चाहिए, अकेले कुछ नहीं होगा। तो भगवान क्या करते हैं? भक्तों की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक पार कर सकते हैं, कि नहीं? इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? भक्तों के रह के अंदर ही भक्ति स्वीकार करना चाहिए, है ना। तो ये अष्टांग योगी हैं। तो भक्ति योग जो है सर्वोच्च योग पद्धति है। इस प्रकार भक्ति योगी सर्वोच्च योगी कहलाता है। और भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट इसका वर्णन करते हैं। तो ये श्लोक पढ़ेंगे थोड़ा, अब थोड़ा मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, आप लोग भी थोड़ा जल्दी जल्दी इसको पढ़ते जाइए, अनुवाद। और बोलिए, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धा वा भजन्ते यो मां स मे युक्त तमो मत। बोलिए, और समस्त योगियों में जो योगी दृढ़ श्रद्धा के साथ सदैव मुझ में वास करता है, अपने अंतःकरण में मेरा चिंतन करता है और मेरी दिव्य प्रेममयी सेवा में रत रहता है, वह योग में अत्यंत घनिष्ठता पूर्वक मुझ में जुड़ा है। मेरा मत है कि वह समस्त योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो देखिए यही चीज है कि हम कैसे न कैसे भगवान की सेवा में लगे रहें, हर समय भगवान का चिंतन करते रहें, भगवान का नाम लेते रहें, भगवत गीता भागवतम पढ़ें। इसी से हमारा क्या होगा? भगवान के हम संगति का अनुभव करेंगे। क्योंकि सारा शास्त्र वेदांत जो भी है सब आकर के कृष्ण के तरफ ही हमें उन्मुख होने के लिए ज्ञान देता है कि कैसे हम भगवान का नाम ले, है ना, उनसे जुड़े। समाज में एक भ्रांति व्याप्त है कि भक्ति योग भावकों के लिए है, जबकि ज्ञान योग बुद्धिमान योग ज्ञान पिपासुओं के लिए है। वस्तुतः अनेक जन्मों में ज्ञान का संपादन करने के बाद ही व्यक्ति भक्ति के समझ स्तर पे आ सकता है।
भगवत गीता के 7.19 में भगवान श्री कृष्ण इसकी पुष्टि की है। तो कई लोग बोलते हैं कि ये भावुक हैं, बहुत हरे कृष्णा वाले बहुत भावुक हैं, हाँ ऐसे बोलते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन हमें जानना पड़ेगा, हमने कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बोलिए, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक बोलते हैं, बोलिए, अनेकों अनेक जन्म एवं मृत्यु के पश्चात जिसे वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है वह मुझे सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का स्रोत जानकर मेरी शरण लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति आनंद ढूंढ रहा है और आनंद के स्रोत को कृष्ण को ही ढूंढ रहा है वो, लेकिन वो भूल गया है। लेकिन यहाँ पे जन्म मृत्यु के पश्चात देखिए ये मनुष्य मिल गया हमें और मालूम जगह भक्ति करना है, लेकिन कई बार लोग भक्ति छोड़ भी देते हैं, तो फिर जन्म मृत्यु का साइकिल चलेगा। जब तक आप कृष्ण के शरणागत नहीं होंगे तब तक आपको ये जन्म मृत्यु चक्र छूट ही नहीं सकते आप। तो बुद्धिमान कौन है, जो इसी जन्म में मालूम जो शरीर मिल रहा है तो भजन कर लो भैया, निकल लो यहाँ से, तो फिर 84 लाख योनि घूमो बार बार। अब पता नहीं पशु योनि मिल गया, वृक्ष योनि मिल गया, गधा का मिल गया, कुत्ता बिल्ली सुअर का मिल गया, तो फिर क्या होगा बताओ हमारे साथ। तो बुद्धिमान तो यही है कि मनुष्य मिला है तो अभी हम भक्ति कर ले, है कि नहीं, तो फिर तो साइकिल चलेगा। हाँ, तो कौन घूमना चाहता 84 लाख, है कि नहीं, कोई नहीं घूमना चाहता। जो भक्त होता है वो इसी जीवन में क्या करता है, भगवान की तरफ उन्मुख होना चाहिए। भगवान की तरफ हमें भक्ति में बहुत गंभीरता से करना चाहिए। हाँ, तो इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति ने भक्ति को अंगीकार किया है हमें समझना चाहिए कि उसने पूर्व जन्म में योग की अन्य सब विधियां संपर्क कर ली है, इसलिए अत्यंत बुद्धिमान मनुष्य श्री भगवान की भक्ति स्वीकार करते हैं। तो देखिए आप लोग बहुत ही भाग्यवान हैं, कई लोग समझ नहीं पाते इस ज्ञान को, इसीलिए हमें चाहिए कि हमें जो भी ज्ञान मिला है एकदम सही जगह पे हमें, अगर हम गुरु परंपरा में जुड़े रहें, भगवान कथाओं को सुनते रहें, भगवद गीता पढ़ते रहें, तो देखिए आप सोचिए पहले का जब नहीं जुड़े थे तो पहले जो कार्य कर रहे थे कितना डिप्रेशन था, कैसे हमारा था जीवन, है कि नहीं। अगर भगवती में आए हैं जब से हम कर रहे हैं तो खुद अनुभव हो रहा है। तो इसको गंभीरता से लेना है और जरूर हम भक्ति करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे जितने भी अनर्थ है, अनर्थ निवृत्त तो हो ही रहा है ना, ये तो होगा ही होगा। जैसे अग्नि है, अगर बच्चा छुएगा तो क्या होगा, उसको भी जलाएगा, भले से उसको ज्ञान नहीं। अग्नि कार्य क्या है, जलाना, है कि नहीं। छोटा बच्चा भी छुए तो अग्नि जला देगी उसे, उन्होंने सोचा कि बच्चा है, नहीं। तो ये जो भक्ति है ये तो बहुत प्रज्वलित अग्नि के समान है। हाँ, इसमें कुछ भी डाल देंगे जला के भस्म कर देगी, इतना पावर है भक्ति में, सोचिए। हाँ, बड़े बड़े ऋषि मुनि, हाँ कितने महाजन, हाँ भगवान को प्राप्त की भक्ति करके। तो हम भी उसी मार्ग पे चल रहे हैं, हमें भी इसमें संकोच नहीं करना चाहिए, एकदम सही मार्ग पे हम जा रहे हैं ना। इतने अनर्थ सब कुछ जल के नष्ट हो जाएंगे। तो समय हो गया है, अब इसकी कथा हम आगे बताएंगे आप लोगों को। ये थोड़ा वैष्णव भजन गाएंगे, थोड़ा मृदंग बजाइए प्रभु, और इसके बाद सबके लिए प्रसाद भी रहेगा। मोबाइल में निकाल लीजिए, मानस देह गेह जो किछु मोरा, बहुत अच्छा भजन है ये। पास पेन ड्राइव था, ग्रुप में डाल दीजिए जो। इससे भी आ सकता है तो उनका तुक लगा सकते हैं, इसमें थोड़ा नेटवर्क आ रहा है हल्का हल्का, अगर लगाना है तो यहाँ भी लगा सकते हैं ताकि लोग देख सकें। ग्रुप में डाल देंगे तो यहाँ से भी खुल जाएगा, नहीं तो नया फाइल खोल के डाल दीजिएगा यहाँ पे। मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग, मानस देह गेह
जो कुछ मोरा अर्पिलु तु आपदे नंद किशोर मानस देहो गेहो जो किछु मोरा अर्पिलु तु आपदे नंद किशोर। बोलिए मानस देहो गेहो जो किछु मोरा अर्पिलु तु आपदे नंद किशोर मानस देहो गेहो जो किछु मोरा अर्पिलु तु आपदे नंद किशोर। बोले मानस देहो गेहो जो किछु मोरा अर्पिलु तु आपदे नंद किशोर। संपदि विपदि जीवने मरणे दया मम गेला तुआ ओ पदवराणे संपद विपदे जीवने मरणे दया मम गेला तुआ ओ पदवराणे मारो बीरा को भी जो इच्छा तुहार नित्य दास प्रति तुआ अधिकार मारो बीरा को भी जो इच्छा तुम्हारा नित्य प्रति पवि तुआ अधिकार जन्माओ विमोरे इच्छा यदि तोरा भक्त गृहे जनी जन्म हो मोरा जन्म विमोहे इच्छा यदि तोरा भक्त गृहे जनी जन्म हो मोरा कीट जन्म हो यदि तु अदास बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आस। बोले कीट जन्म यदा तु अदास बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आस। भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन ये भक्त लभैते ताक संग अनुरक्त भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन ये भक्त लभैते ताक संग अनुरक्त जनक जननी दयिता तनया प्रभु गुरुपति तू सर्वमाया जनक जननी
दैततनय प्रभु गुरुपति तू सर्वमाया भक्ति विनोद कहे सुना काना राधानाथ तू अमर पराण भक्ति विनोद कहे सुना काना राधानाथ तू अमर पराण मानस देहोगे हो जो की जुमोरा अर्पिलु दुआ पदे नंद किशोर मानस देहोगे हो जो की जुमोरा अर्पिलु दुआ पदे नंद किशोर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो जो पहली बार आए हैं वो जपमाला कैसे करना है उनको मैं बताऊंगा। बाकी सबके लिए दर्शन बचा है 10 मिनट तो कर लीजिए आप लोग मंदिर में, फिर नीचे प्रसाद होगा सबके लिए। ठीक है। हरे कृष्णा। कोई किसी का प्रश्न है तो प्रश्न लाके पूछ सकते हैं, जो क्लास से संबंधित है, जिसको समझ में नहीं आओगा कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।